बेसुमार अथाह अगणत अतुलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। चेत गोविंद आराधिया, होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाइयै, रसना नाम पना। चेत गोविंद आराधिया, होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाइयै, रसना नाम पना। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसे गणा। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रविया विच वणा। सो प्रभ चित न आवई, कितड़ा दुख गणा। जिन्नी राविया सो प्रभु, तिन्ना भाग मना। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल गुरु गरीब नवाज साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जीआं दी हजूरी अंदर नवें साल दे उपक्ष विच संगरांद दे दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते गुरु चरनां विच इकत्तर होई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, नवें साल दियां आप सब नूं लख लख वधाइयां। अज गुरमत दा नवां साल है। गुरु नानक साहब दे घर दा नवां साल चेत तो आरंभ हुंदा है। सब तो पहला विचार की आरंभता शुरू करिए मन बिरतियां की एकाग्रता वास्ते। एक बार कलगीधर पिता जी के चरणों का ध्यान धरिए, गुरु फतेह की सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगरांद का की अर्थ है? संगरांद एक संस्कृत भाषा का शब्द है संक्रांति, जिसका अर्थ बनता है बदली जां तब्दीली। 12 रासां हन। सूरज एक रास तो जदों दूसरी रास विच प्रवेश करता है तो उन्होंने आख्या जाता बदली हो गई जां तब्दीली हो गई। तो संक्रांति आख्या जाता सी। संक्रांति का बदलवा होया रूप
ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦਿਮਾਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ 12 ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸੁੰਨਤ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਔਰਤ ਦੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਫਰੀਡਮ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ ਉਹੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਛਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪ ਮਰਦਾਨਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਆਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਵੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਾਲੇ 12ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲੇ 12ਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 12ਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਰੂਪ ਹਨ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲੇ 12ਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਾਲੇ 12ਵਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ। 12 ਮਾਹ 12 ਮਹੀਨੇ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਚੌਥਾ ਰਾਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਐਰਕਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, 12ਵਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ, 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ 3 ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ 19ਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, रूह जुम्मा मोमनान पाक बाज गिरदमी आए दे अज बाहर नमाज। कहते मुसलमान भाई ना शुक्रवार वाले दिन जुम्मे की नमाज वास्ते मस्जिद विच सारे इकट्ठे होंदे हन। फिर 20वें शेर विच आखदे हन, हम चुना दर मज मैं साध संग कज मुहब्बत बा खुदा द रंग रंग। साडे मजहब ने, गुरु नानक दे धर्म ने साध संगत नूं रंग चढ़न वास्ते साध संगत नूं चुन लिया। हम चुना दर मजहब, साडे धर्म ने मजहब ने, मैं साध संग कज मुहब्बत बा खुदा द रंग रंग। खुदा दे रंग विच रंगण वास्ते असी साध संगत नूं मुख तौर ते चुन लिया। गिरदमी आयद दर माहे 2 बार, 2 वार महीने विच असी चुन लए। बाहर जिक्र खसाए परवतगार, उस परवतगार की बंदगी करन वास्ते असी महीने च 2 दिन चुने। किहड़ा किहड़ा? मस्या ते संगरांद दा दिन। असी आखदे ने ना
कि मत्सगरान का बड़ा पवित्र दिहाड़ा है। पर गुरु साहब कहते साई घड़ी सुलखणी जित सिमरत हर नाम। घड़ी उहदे लई सुलखणी है जिन्हें हरि का नाम सिमरिया। जिहड़ा इस समय शराब के ठेके ते बैठा उहदे लई घड़ी चंगी हो सकती है। जिहड़ा इस समय होर कोई पाप कर रहा उहदे लई घड़ी चंगी किवें हो सकती है। साई घड़ी सुलखणी जित सिमरत हर नाम। जिन्हें हरि का नाम सिमरिया उस वास्ते ही ये घड़ी जिहड़ी सुहावनी हो सकती है। सो गुरु साहब किरपा करते हैं। किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो। राम दाता असीं अपने कर्मां करके विछड़ चुके हाँ। सानू किरपा करके अपने नाल इस जन्म दे विच मेल लो। इनू भगत बाणी विच भगत जी ने आख्या बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म हो गए आप जी तो विछड़िया होया नू। ये जन्म हुण आप जी दे लेखे वास्ते है दाता जीओ। इसे नू गुरु नानक साहब ने आख्या अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। जिवें सारे दिन का अमृत वेला सवेर है, 84 लख जूनी का अमृत वेला मनुखा जन्म है। चार कुंठ दह दिस पर में थके आए प्रभ की शाम। चार दिशा जिहड़ियां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ते चार इन्हां दे कोण 8 ते धरत ते आकाश 10। 10 दिशा भरम के जिवें फिर कोई सेंटर बिंदु ते आ जावे। 10 दिशा भरम के दाता जी थके आए प्रभ की शाम। जिथों भेजिया होवे वापस उत्थे ही आ जावे। दाता मैं हुण तेरी शरण दे विच आया, किरपा करो मेरे ते रहमत वरताओ। तेन दुधै ते बाहरी। हुण कुछ उदाहरणां दित्तियां श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज ने। तेन दा अर्थ है गऊ। तेन दुधै ते बाहरी किते न आवे काम। आपां घरां 'च पशु रखदे हाँ, गऊआं रखिया होंदियां ते गऊ जे दुध ना दवे तो वह किसी काम नहीं आउंदी। तुसीं उहनूं रेड़े जो नहीं सकते, हल नहीं जो सकते। जे हल जोलोगे रेड़े जोलोगे पहली गल तो अपनी संस्कृति अंदर है नहीं। जे जोलोगे कोई ना कोई विजक्शन कर देगा, बड़ा पापी बंदा, उन्हें गाई रेड़े जोली वेखो। तो कहते ये किसी काम ही नहीं आउंदी। इस तरह जिहड़ी ये तेरी बुद्धि है, गऊ रूपी बुद्धि है, ये चंगे गुणा तो बिना ये भी किसी काम नहीं आउंदी। जिवें दुध तो बिना गऊ काम नहीं आउंदी। दूसरी उदाहरण हुण वेखो, इहदी व्याख्या करन दी लोड़ पैंदी नहीं, समझ आ जाती है। जल बिन साख को मिलावती। पहले साख ही कहते हुंदे से, कहते ना फसल नूं शाखां फुटाइयां। जल बिन साख को मिलावती। कमलावती भाव कमला जानी, जल पानी तो बिना। जल बिन साख को मिलावती। हुण किसी दी फसल दियां कुंबलियां कुमला जाण ते किसान बड़ा विराग च आ जांदा। काहदे वास्ते? उहनूं इस करके नहीं चिंता हुंदी कि फसल सोहणी नहीं लगदी। उहनूं पता हुणे तो चंगा झाड़ नहीं मिलना मैनूं। उपजै नाही दाम, इस तो दमड़े नहीं पैदा होने। पहली उदाहरण गऊ वाली दित्ती। दूजी दित्ती कि जल बिन साख को मिलावती उपजै नाही दाम। ते तीसरा आख्या हर नाह ना मिलीए साजन। जे तैनूं इस जन्म विच भी परमात्मा नाल तेरा मिलाप नहीं होया, हर नाह ना मिलीए साजन कत पाईए विश्राम। दस कदों रब नूं पाएगा? जदों मोढे ते जूड़ा रखिया होएगा तेरे ते। कदों पाएगा? जदों गंदगी का कीड़ा बनया होवेगा। हुण ते वाहिगुरू कह सकदा, उदों तो नहीं कहा जाना। हुण ते सत संगत कर सकदा, उदों नहीं कीती जानी। फिर हजूर आखदे हन जित घर कर भाव के हिरदा हर कंत ना प्रगटी पठ नगर से ग्राम। जिस हिरदे च हरि परमात्मा प्रगट नहीं होया, वो उजड़िया पिंडां दी न्याई हन। सर्ब सिंगार तंबोल रस
सण देही सब खाम। जिन्ने मर्जी श्रृंगार कर ला, उस मालिक दी जात तो बिना सारे देही नूं खाण वाले हन। गुरु अर्जन देव पातशाह आखदे हन, करम धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जगाती लुटै। धर्म के रूप च जिन्ने भी पखंड कर्म दिसते हैं ना, नज़र आउंदे, उन्होंने जमदूत रस्ते दे विच ही लुट लैंदे हन। वो दरगाह तक नहीं जे पहुँचते कदे। सरब सिंगार तंबोल रस, सण देही सब खाम। हुण एक उदाहरण गुरु साहब ने होर दे दी। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जण सब जाम। ਜਿਹੜੀਆਂ जीव रूप इस्त्रियां अपने पति तो सखणियां ਹਨ, उदाहरण दे के सतगुਰਾਂ ने समझाया। प्रभ स्वामी कंत विहूणियां, कंत का अर्थ है पति। ਜਿਹੜੀਆਂ जीव रूप इस्त्रियां अपने पति तो सखणियां ਹਨ, मीत सज्जण सब जाम। गुरु साहब कहते जिन्ना मर्जी हार श्रृंगार किया होवे कि पति ने आना है, पर जे पति घर विच आवे ही ना, तो उन्होंने जिहड़ा सारा परिवार है ना, मित्र हैं, जिहड़े रिश्तेदार हैं, भैन भरा, वो सारे जमदूत नज़र आउंदे हन। अक्सर इस तरह हुंदा, जिस बीबी दी अपने पति नाल बनना ना हुंदी होवे, ते उहनूं घर दे सारे जमदूतां वांग ही नज़र आउंदे आ। एक जुगती दसी गुरु साहब ने, जिन्ना एक बच्चा अपनी माँ दे नाल प्यार करदा होवेगा ना, बच्चे तो भाव मेरा छोटे बच्चे तो नहीं है, नौजवान की गल कर रहा मैं, जिन्ना तुसीं अपनी माता दे नाल प्यार करोगे ना, पिता नाल प्यार करोगे, तो उन्ना ही बीबी राणी जिहड़ी वो तुहाडी माता नाल प्रेम करेगी। क्योंकि बीबियां जिहड़ियां अपने पति की खुशी लेना चाहुंदियां, पति नूं खुश वेखना चाहुंदियां। जिन्ना तुसीं अपनी सिंघणी का ख्याल रखोगे ना, जिन्ना तुसीं अपने सिंघणी का ख्याल रखोगे ना, उन्ना तुहाडे माता जी अपनी नूंह दे नाल प्रेम करनगे। क्योंकि वो अपने पुत नूं खुश देखना चाहुंदी है माँ, ते उहनूं ये लगदा माता नूं कि इहदी खुशी इस विच है। ये सानूं गुरु साहब ने समझाउणा कीता है। सो हजूर किरपा करदे हन, जित घर हर कंत ना प्रगटी भटनगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबोल रस, सण देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जण सब याम। जिस दी अपने कंत पति नाल नहीं बन आउंदी, उहनूं मित्र रिश्तेदार सारे जमदूतां वांग ही मिलदे। इस तरह जिसदी इस जन्म विच परमात्मा दे नाल बन नहीं आई ना, मेल नहीं होया, उहनूं सारे जमदूत ही नज़र आउणगे। नानक की बेनंतियां कर किरपा दीजै नाम। हुण एक अरदास कर दो गुरु नानक दे चरनां च, महाराज एक बेनती है, नाम दी दात बख्शिश कर दो। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निहचल ताम। हुण दाता जी किरपा करो, अपने चरनां नाल मेल लो, जिहदा एक घर सदा ही रहन वाला है। सो गुरमुख प्यारिओ, अज नवें साल की आरंभता हुई है। नवें साल दियां आप सब संगतां नूं लख लख वधाइयां। तुसीं कहोगे भी हुण नवां साल किवें चढ़िया? असल विच प्रकृति का नियम भी यही है, नवां साल भी हुण ही चढ़दा। आ बच्चों दीयां नवीआं क्लासां भी वेखियो तुसीं हुण ही आरंभ होणीआं, अध मार्च दे विच ही जाके वनस्पति भी हुण ही फलन फुलन लगदी है। ते चेत के महीने तो ही असल दे विच नवें साल की आरंभता हुंदी है। ते गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं, चेत गोविंद आराधी है। चेत का पहला अर्थ है परमात्मा नूं चेते करना, दूजा है चेत महीने का नाम है। गो तो भाव पैदा करना, विंद तो भाव पालना करना। जिहड़ा पैदा करके पालना करता है
उस परमात्मा की आराधना करिए, होवे आनंद घना। घने का अर्थ है बहुत ज़्यादा संघना आनंद प्राप्त होवेगा तुहानूं। हुण आनंद दियां भी तीन अवस्था हैं, मैं थोड़ा जिहा विषय नूं खोल के समझावां। आनंद की पहली अवस्था है नाद, बनोद, कोड आनंद। आपां सारे आखदे ने दो क प्रशादे छक के कहने बड़ा ही आनंद आया, थोड़ी जी गड्डी तेज चला के ने बड़ा ही आनंद आया, होर भी वधिया वस्त्र पा के भी बंदा कह दिंदा कि बड़ा अज आनंद आया, फलानी जगह गए सी, बड़ा वधिया कपड़े पाए सी। कई बार हवाई सफ़र करके बंदा कहंदा सफ़र करके बड़ा आनंद आया। पर गुरु साहब आखदे आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। आनंद गुरु तो पता लगदा आनंद की है। तो गुरु नानक साहब कहते आनंद दियां तीन अवस्था, नाद, बनोद, कोड आनंद। आनंद की पहली अवस्था यह है, मैं तुहानूं एक उदाहरण दे के समझाउणा। किसी मां का पुत्र 2-3 साल तो गवाच गया, आस मुक चुकी उन्हें वापस आना कि नहीं आना, 2 साल हो गए नहीं आया। 2 साल बाद किसी ने आके कान च आवाज़ पाई, माँ तू वरलाप ना कर, रो ना, तेरा पुत्र है जिउंदा। उन्होंने मैं आनंदपुर साहब वेख्या, उत्थे केसगढ़ साहब सेवा करदा लंगर च। तो जिन्नी उस मां नूं खुशी हुई होएगी ना सुन के, जिन्हें आसला दी होगी कि तेरा पुत्र जिउंदा, वो आनंद की पहली अवस्था है नाद। तो जदों मां नूं नाल लैके गए तो जाके दिखाया, मां ओ वेख सेवा करदा तेरा ही पुत है। हुण मां दी अखां भला पहचानों रह सकदियां पुत नूं? जदों मां ने पहचान लिया, वो आनंद की दूसरी अवस्था है बनोद। तो जदों फिर मां ने जाके गलवकड़ी पा ली ना, अपने पुत्र नूं मिल लिया तो विरलाप किया कि तू मां नूं किवें भुल गया पुत्रा। तो वो आनंद की तीसरी अवस्था है कोड आनंद। जदों तुसीं किसी ग्रंथी कोलों साडे कोलों गुरबाणी सुनदे हो ना, वो आनंद की पहली अवस्था है जदों मां नूं दस्सिया सी तेरा पुत्र है जिउंदा। नाद वो अन्नी खुशी है। तो जदों तुसीं आप अपने नेत्रां नाल दर्शन करदे हो ना, वो आनंद की दूसरी अवस्था है जदों मां ने अपने पुत्र नूं आप देख लिया सी, जाके विश्वास आ गया सी कि है। तो जदों फिर तुहाडे अंदर गुरबाणी आप चलन लग पैंदी ना, वो फिर आनंद की अंतिम ते तीसरी अवस्था है कोड आनंद। जदों मां ने एकमिक हो गई सी पुत्र नाल घुट के गलवकड़ी पा के। सो इस करके हजूर आखदे चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद घना। घना कहंदे ना फलाने रुख की छां बड़ी घनी है, बड़ा घना फिर संघना आनंद आएगा तुहानूं। फिर होवे आनंद घना संत जना मिल पाइए रसना नाम पना। आसाद संगत विच आके ये आनंद प्राप्त होवेगा। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा। जिसने अपने प्रभु नूं पाया उन्हां दा इस संसार ते आउणा गिणती विच है। जिस नूं गुरु नानक साहब ने आख्या आखां जीवां विसरै मर जाऊं। जे आखां तां जीवन है, जे विसर जावे तां मृतक दे समान है। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। एक अख झमकन जिन्ने समय दे विच भी तेरे तो बिना जीवना ना, वो व्यर्थ जिहड़ा जन्म गवाउण वाली गल है, वो जन्म व्यर्थ गवा जाता है। जल थल महील पूरिया रविया विच बना। वो जलां थलां दे विच धरती आकाश दे विच वो वणां दे विच जंगलां दे विच भी रविया होया है परमात्मा। सो प्रभ चेतन आवी कितड़ा दुख गणा। पर जिहड़ा इहो जिहा परमात्मा है जिहड़ा जल थल विच धरती आकाश विच जंगलां विच वणां विच रविया होया, जे ऐसा प्रभु भी चेते विच ना आवे फिर किड्डा वड्डा दुख है ये। कितड़ा दुख गणा, किड्डा वड्डा दुख ये गिणिया जा सकता है। जिन्नी राविया सो प्रभु तिन्ना भाग मना। जिन्हां ने अपने प्रभु नूं राविया सिमरिया उन्हां दे बड़े वड्डे भाग हो गए हन।
हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। हरि परमात्मा दे दर्शनां नूं जिन्हां दा मन लोचदा है, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। जिन्हां दे मन दे विच प्यास है उस परमात्मा दे दर्शनां दी, गुरु अर्जन देव पातशाह जी आखदे हन, चेत मिलाए सो प्रभु तिस के पाई लगा। उन्हां नूं चेत रूपी इस मनुखा जन्म दे विच प्रभु मिल जाता है, तो मैं उन्हां दे चरनां दी धूड़ी लोचदा हाँ, उन्हां दे चरनी लगदा जिहड़े परमात्मा नूं पा लैंदे हन। सो 12 माह दी संपूर्णता दे उत्ते गुरु साहब किरपा करदे हन। तुसीं संगरांद ते आम अरदासां कराउंदे हो ना कि मेरे काज सवर जाण, मेरा बच्चा बाहर फॉरन कनेडा चलिया जावे, पर इत्थे बड़ा सौखा तरीका दस्सिया 12 माह विच गुरु साहब ने, जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे। तुसीं बह के इत्थे ध्याओ नाम, तुहाडे काज सवर जाणगे। बह के आख्या करो इत्थे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। जिन जिन नाम ते आया, वेखो इत्थे किसे दा नहीं आख्या सिख ने, भावें कोई हिंदू होवे, भावें कोई मुसलमान होवे, भावें कोई ईसाई होवे, भावें कोई वीर होवे, भावें कोई भैन होवे, भावें बच्चा होवे, बजुर्ग होवे, जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे। उन्हां सारियां दे काज सवर जाणगे। हर गुर पूरा आराध्या, दरगे सच खरे। जिन्हां ने पूरे गुरु की आराधना की, वो दरगाह विच सच्चे जेड़े खरे नितर गए हन। एक खोटा पैसा हुंदा सी, एक खरा हुंदा। कहंदे ना फलाना खोटे पैसे वांग वापस आ गया। जिहड़ा खरा हुंदा वो चल जांदा, खोटा वापस हो जांदा। सर्ब सुखां निध चरण हर, पवजल बिखम तरे। सर्ब सुखां, सारे सुखां दा खजाना जिहड़ा निध अर्थ हुंदा बड़ा वड्डा खजाना, वो प्रभु दे चरण हन। पवजल बिखम तरे, बिखम नदी तर जाते हैं। प्रेम भगत तिन पाईया, विख्या नाहीं जरे। वो प्रेमा भगती दे नाल उस मालक नूं पा जाते हैं। वो विख्या रूपी जहर रूपी पदार्थां दे नाल नहीं लगदे। कूड़ गए दुविधा नसी, पूर्ण सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक धरे। जिहड़े परमेश्वर प्रभु नूं सिमरदे हन, वो मन दे अंदर एक दा ध्यान धरदे हन। महादिवस मूरत भले, ये महीना ये दिन उन्हां वास्ते चंगे हन जिस को नदर करे, जिन्हां ते प्रभु आप नदर करदा है। नानक मंगे दरस दान, किरपा करो हरे। एक ही दान मंगते हैं दाता जी आप जी तो, आप किरपा करो, रहमत करो। इन्ने बचन करते हुए समाप्ति जी। अज नवें साल की रमता हुई है। नवें साल दियाँ चेत दे महीने दियाँ आप सब संगतां नूं लख लख वधाइयां। कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे, गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शण जोग हन। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। यो बिलावल महला पंजवां। धरती वाह न लगे पार ब्रह्म सरनाई, चौ गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया जन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया कल बुलाई रहा। राखी रखना सब मिटाई, कहो नानक कृपा पई। प्रभ पे सहाई, कहो नानक कृपा पई। प्रभ पे सहाई। वाहिगुरु।